It is well said that in a healthy body resides a healthy mind. Hello, everyone. I, Suchi, welcome you to our special lecture today to be delivered by a very special guest between us, Mr. Vikas Uttana. The times we are living in are very uncertain and everyone is worried about their health. Keeping in mind these adverse situations, DME Media School has organized this special webinar titled Wellness in this Time of Pandemic. I would now like to request Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School, to welcome our guest and address the gathering. Thank you, Suchi. So, obviously, we are passing through such a phase wherein the healthcare, wellness, all these things have become of prime importance to each one of us. Though health was always an important thing, it's not that that is something which has become important now. But then the kind of thing which have happened for the last one more than 1 year, rather I should say, since the time this COVID-19 has struck. So this has made us to understand that how much important the health is. We Indians otherwise always neglect health, and we are never bothered that what all things should be done, should not be done for maintaining the health. Now, this is the time that we must look at these issues. We must try to understand these issues because if our health is good, our immunity system is good, then obviously we can fight with the diseases, whether it's corona or tomorrow there might be some other disease. It will keep on happening, and we in our day-to-day life also, even if there is no pandemic, we always fight with so many health issues. So we must understand the importance of health, and then how we can make ourselves healthy and fit. So this is what was thought by DME Media School, and that is how we planned this session, so that everybody is apprised on so many such things which otherwise we don't pay attention to. And to take today's lecture, we have invited Mr. Vikas Utank. He is a journalist by profession. He's a senior journalist, and since this health and wellness, this is his area of interest. So he has developed a lot in this area also, and he is always ready to make the people benefited with whatever he has learned, whatever he has gained over the years in the area of wellness. So he was very forthcoming in accepting our invitation and to join today's session. So we welcome Mr. Vikas for sparing time and to be with us in this session. And I welcome all the participants, all those who have attended this session. And I wish that after the lecture of Mr. Vikas is over, then if anybody is having any queries, etc., they should also ask those things, because if there's an interactive session, then obviously I believe it will be beneficial to all of us. Thank you all. Thank you, sir. So, without much delay now, I would like to introduce our guest of the day, Mr. Vikas P. Uttanak. Sir is a journalist and a wellness expert. Sir has 2 decades of experience in Hindi journalism. His work has been published in various national dailies, including KRC Times, BSC Chronicle, Live India, Janmat TV, Total TV, Jan Satta, Dainik Bhaskar. Sir has also experience in wellness consultation. Sir is a motivational speaker on health and wellness and focuses on diet management and lifestyle related disease. Today, Sir will be sharing with us his wisdom and help us in managing our stress. We welcome you, sir. Thank you. Thank you so much, Amrish sir, प्रोफेसर सुष्मिता मैडम, सुचि पाठक और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथी और स्टूडेंट्स और इनके गार्जियंस जो भी सुन रहे हैं, इस सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अमरीश सर को मैं दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ
कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आज बोलने का मौका मिला। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा टेस्ट करना चाहूँगा। सुची जी, क्या आप बताएँगे कि मेरी विजुअल्स सही आ रही है? बर्न तो नहीं हो रही? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. ये साउंड डाउन एक Yeah, Vikas ji, it's perfect. Works. Yeah. ओके, ओके, थैंक यू। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा, तो वो ज़्यादा रीच ज़्यादा तक रहे लोगों की। और अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों का मतलब है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठे, कोई भी हाँ, सब्जेक्ट विषय जो है वो गंभीर है, लेकिन इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कूल माइंड होके बैठिए और इंटरैक्ट करते रहिए। मैं चाहूँगा कि आप मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ, आप उसका जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। बाद में हम लास्ट में आपके क्वेश्चन लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रहें और मेरा साथ दें। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा-सा जो है म्यूट करके रखें, तो बेहतर रहेगा। तो मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि सर ने बताया था कि वेलनेस इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, आज के समय में पैंडेमिक कोरोना का नाम सुनते ही सबके दहशत दिल में आ जाती है। क्यों आ जाती है? एक्चुअली क्या है कि कोरोना वायरस जो है महामारी ने हमें सिखाया है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हरदम कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पिछले 15 से 18 महीने में जो समय है उसका मूल्यांकन करें तो हमें बहुत सारा सबक सीखने को मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हम सब मतलब के लिए बहुत कठिन वर्ष रहा है, बहुत दुखद भी रहा है। बहुत सारे हमने अपने खोए हैं लोगों को। हमारे जीवन और जीवन शैली में अचानक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसके लिए हम पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम सब पर एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है? तो हालाँकि ये बात अच्छी रही है कि आज लोगों के बीच मेंटल हेल्थ को लेके जागरूकता बढ़ी है, उस पे चर्चा होने लगी है। ऐसा जीवन के निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है जहाँ किसी के मानसिक क्या कहना चाहिए कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करना प्राथमिक हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं एक अपनी स्लाइड को शेयर करना चाहूँगा। परमिशन है? Ji. ओके। I think the host can provide the screen sharing. या। Yes, sir, you can start. ओके, जस्ट 1 मिनट। जहाँ पे मेरी आवाज़ अगर ब्रेक हो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो जिससे कि मैं उसको फिर से कर सकूँ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होगा। आपको मालूम होगा कि हम इंडियंस में एक चीज़ है कि बहुत भावुक किस्म के होते हैं, लेकिन एक खराब आदत भी है कि 10 में से 4 इंडियंस जो हैं वो आलसी होते हैं। थोड़ी-सी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई है। जबकि हम लोग जो है खान-पान में हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसको पचा नहीं पाते हैं। तो पचाने का मतलब है हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम रहती है कि वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। आपका जो ज़्यादा एनर्जी जाती है। हाल में एक द लासेंट में प्रकाशित एक लेख आया था। उसमें कहा गया है कि 10 में से 4 भारतीय उतने सक्रिय नहीं रहते हैं जितने कि उन्हें होने चाहिए। कुछ स्टडीज़ में यहाँ तक ये बोला गया है, उन्होंने अपनी बात को रखा है कि 52% भारतीय शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं। ये चौंका देने वाला एक फैक्ट लगता है कि एक और स्टडी में संकेत मिला कि गतिहीन जीवन शैली जो है वो क्यों जो हमारी एक्टिविटी नहीं होती है वो हमारे धूम्रपान करने से या क्या कहते हैं मधुमेह हो गया, मधुमेह हार्ट डिजीज़ हो गई, उनसे ज़्यादा बदतर ये कंडीशन होती है। और जीवन शैली के चलते होने वाली कई तरह की बीमारियाँ आजकल शहरी युवाओं में, स्टूडेंट्स में आम बात तो होती जा रही है। हालाँकि अगर खान-पान और दिनचर्या में थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो माना जा सकता है कि न सिर्फ़ इनसे बचा जा सकता है बल्कि
अपने जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोरोना के समय में जो ये पैंडेमिक का काल है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है कि आप अगर नेचर से अलग जाएँगे तो आप ज़रूर कहीं न कहीं अपना नुकसान करेंगे। आपको नेचर के साथ में चलना है। अ, एक वेलनेस पे अगर इसमें डेफ़िनिशन की बात की जाए तो मुझे परफ़ेक्ट लगता है कि वेलनेस क्या है? ये एक्चुअली बॉडी, माइंड और स्पिरिट इसका एक इंटीग्रेशन है। ये 3 मिलके हमारे पूरे वेलनेस का मतलब होता है कि अपनी खुद रक्षा करना, वो बॉडी के थ्रू हो सकती है, माइंड के थ्रू हो सकती है और स्पिरिट के थ्रू हो सकती है। तो ये एक कंबाइंड इंटीग्रेशन है। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसका हमारे वेलनेस की जो पोज़ीशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बहुत अच्छे ग्रेग एंडरसन का स्टेटमेंट था, मुझे बहुत हमेशा इंस्पायर करता है, मैंने बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। अ, वेलनेस पे 7 इनके डायमेंशन हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल। तो हम यहाँ पे जो है बात अगर करेंगे कि फिजिकल की हम डिटेल से बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल के लिए आपके जो स्टूडेंट्स के जहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं या जो भी अभी तक उन्होंने सीखा है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में मालूम है। फिर इमोशनल हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, सोशल है, ऑक्यूपेशनल बाद में आया। इसके विषय में थोड़ा-सा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये फिजिकल इमोशनल, सोशल स्पिरिचुअल और ये 4 जो जो 5 थे, ये फ्रीडम से पहले जब आज़ादी मिली है, उससे पहले इन वेलनेस पे वर्क होता था। जब आज़ादी के बाद में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, औद्योगीकरण हुआ, तो उसके बाद में फिर इसमें ऑक्यूपेशनल और इंटेलेक्चुअल ऐड कर लिया गया। वो उनसे रिलेटेड इश्यू को देखा जाने लगा। फिर ग्लोबलाइज़ेशन और लिबरलाइज़ेशन के बाद में इसमें जो कहा जाता है कि जोड़ दिया गया है एनवायरमेंटल। आजकल एनवायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो हम फिलहाल इस पे आगे बढ़ने पे सारे पे ना करके चर्चा सेल्फ केयर के टाइप्स करेंगे। 4 प्रकार के आप हैं। एक किसी भी इंसान के लिए जो अपनी सेल्फ केयर करने के लिए 4 चीज़ें मेन ज़रूरत होती हैं। जो बाकी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो इंस्टीट्यूशनल तौर पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। तो इसमें फिजिकल है, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। कुछ इसमें पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे कि फिजिकल के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ इमोशनल के लिए हैं, सोशल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सब लोग इसको आप लोग कर रहे होंगे। इम इसमें हम फिजिकल पे डिटेल से बात करने वाले हैं। इमोशनल पे क्या होता है कि जो हमारे विचार हैं, भावनाएँ हैं या हमारी जो चैलेंजेज़ होते हैं, उनसे निपटने की जो क्षमता और इमोशनल कंसर्न जो मेरे होते हैं, उन पे कंट्रोल करना ही इमोशनल वेलनेस के तहत आता है। इसमें 3 उपाय जो मेन तौर पे आप लोग सब जानते हैं। कोई नई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये संबंध रखते हैं इससे कि आप 10 मिनट का मेडिटेशन डेली जो है करने से क्या होती है कि आपको दर्द सहने की क्षमता आप में डेवलप होती है, आपका टेंशन कम होता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप ये कहा गया स्टडीज़ में आई हैं कि अगर आप 30 मिनट रोज़ म्यूज़िक सुनते हैं, तो उससे क्या होता है डिप्रेशन से आपको निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हार्ट अटैक की बीमारी जिसको होती है या कुछ चेस्ट पेन हो रहा है, अगर उसके थोड़ा-सा म्यूज़िक अगर हम बजाते मतलब प्ले कर दें, तो उसको जो रेस्ट थोड़ा-सा तनाव, डिप्रेशन कम होता है, जिससे कि उसके सुधार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल वेलनेस पे। ये क्या होता है, ये सब लोग बहुत आप अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की मैं बात करूँ या अपने फ्रेंड्स है, फैमिली हो गई या कलीग या जान-पहचान के लोग, उनके साथ अच्छे संबंध रखने से और साथियों को जो मतलब कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका टेंशन में नहीं रहना या उससे मुक्त करना ही ये सोशल वेलनेस के तहत आता है। और इसमें हार्वर्ड से हेल्थ स्कूल के मुताबिक जो है कि जो लोग दोस्तों के साथ हफ्ते में मतलब अपना कुछ समय बिताते हैं, तो उनमें डिप्रेशन, एंग्जायटी कम होती है, मतलब उनकी संभावना बहुत कम रहती है।
उनमें क्या है, दोस्त बीमारी जो है फ्रेंड के साथ में रहने से आपको फील होता है कि आप बीमारी से जल्दी रिकवर हो गए हैं। अकेलेपन का शिकार लोगों में जो है डिमेंशिया का खतरा 2 गुना हो जाता है, जैसा कहा गया। और अगर आप इस बीच में क्वारंटाइन के समय पे अगर देखें, तो आपके जो फ्रेंड सर्किल रहा है या आपके मिलने वाले, भले ही आप उनसे फिजिकल नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप सोशल साइट्स के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आप रहे हैं, तो बहुत रिलैक्स मिलता है, रियली बहुत उसमें आपको फ़ायदा होता है। इसके साथ-साथ आप अगर खेलते हैं, खेलने में इंटरेस्ट आप रखते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इसमें होता है। लेकिन अभी आउटडोर हम जा नहीं सकते हैं, तो घर में आप रह के भी ऐसा कुछ गेम्स खेल सकते हैं। जैसे कि किसी भी समस्याओं के समाधान की क्षमता भी इससे क्या होती है, आपकी डेवलप होती जाती है। जब आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी में एक एंडोर्फिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है। इससे न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप सबको अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप आसानी से कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। आज के पैंडेमिक के टाइम में हम आगे है कि स्पिरिचुअल वेलनेस, इसमें क्या है कि हमारी लाइफ का एम क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मान्यता क्या है, उनको पहचानना या उनके मुताबिक एक आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वेलनेस को प्राप्त करना होता है। इसमें जैसा मैंने सब पहले बताया है कि बॉडी हो गया, माइंड हो गया और आपकी स्पिरिट यानी मन के बीच संतुलन एक बनता है, जिससे कि ये पाया जाता है कि लोगों में ये करने से जल्दी उनको अपनी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे निकलने में मिलती है। क्या करना होता आपको चाहिए कि लोगों की मदद करें, प्रार्थना करें, हमेशा खुश रहें। जो देंगे आप वो आपको मिलेगा, इसलिए आप दूसरों के लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। एक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि क्लीवलैंड क्लिनिक के जो है उन्होंने रिसर्च की, उनके मुताबिक कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को उपहार देते हैं, तो आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड जो है रसायनों का, केमिकल्स का आपका स्राव होता है, मतलब रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक सेहत मतलब वेलनेस हेल्थ आपको सुधरती है। अभी भी जब भी आपको वक़्त मिले आप प्रे करिए, प्रार्थना करिए अपने और अपने मिलने वालों के लिए, के स्वास्थ्य, उनकी हैप्पीनेस के लिए बेहतर तरीके से जितना आप उनके साथ अटैच होंगे, आप स्पिरिचुअल वेलनेस की तरफ 100% बढ़ेंगे। इसके अलावा इनकी कार्यप्रणाली बेहतर होती जाती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है स्पिरिचुअल वेलनेस पे हम करते हैं तो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा सुधार होता है। जो तनाव वाला हार्मोन होता है ना कोर्टिसोल, जो हमारे में जब स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन डेवलप होता है कोर्टिसोल, उसको डिक्रीज़ करने में बहुत मदद मिलती है। बाकी के हम जो वेलनेस के ऊपर था बताया कि हम बाद में कभी अगर मौका लगेगा तो हम चर्चा करेंगे। इस कोरोना के समय में कैसे हमको बचना है, जैसा कि मैंने बताया कि वेज़ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सबको मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। इसमें कोई नया नहीं है कि आप पर्याप्त इनफ जो है नींद लीजिए, अच्छी डाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है? और स्ट्रेस से दूर रहें। ये खासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें उनको अच्छे से मालूम है कि मतलब यानी कि आप योगा करते रहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, ये अच्छे से मालूम है। लेकिन इसकी एक्सरसाइज़ 1 टू 1 कैसे करनी है और जो चारों हमने वेलनेस के डायमेंशन बताए हैं, वो कैसे हमारे उसमें आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा-सा रोचक बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ एक सेल्फ क्या कहना चाहिए कि सेल्फ आप अपना स्वयं का जो है निरीक्षण करें, पता करें कि आपके वेलनेस का लेवल क्या है। तो उसके लिए एक अगली 11 स्लाइड्स हैं। हर स्लाइड्स को आपको 1 से लेके 5 जो है आपको स्टार देना है, उसमें कोई भी जो आप सेलेक्ट करें, लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ कि आप वो डेली लाइफ में कितना उस पे फॉलो करते हैं,
उसके हिसाब से दीजिए, और देने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे रखा है मैंने, उस पे आप भेज सकते हैं, तो मैं बता पाऊँगा कि आपका वेलनेस लेवल क्या है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे बढ़ते हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपके टीचर्स को भी समझने में बहुत मदद करेगा कि आपका वेलनेस लेवल जो इस समय ज़रूरत है जानने की, वो क्या है। तो मेरी पहली स्लाइड्स आप इसकी देखेंगे कि स्टेप्स टू हैप्पीनेस, खुशी कैसे आपको मिलनी चाहिए। खुशी कोई देता नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी थाली में सजा के आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। आपको खुद वो हैप्पीनेस को जनरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं तो मॉर्निंग रितुल, मतलब सुबह आप उठे, थोड़ा-सा ईश्वर का आभार व्यक्त किया, थोड़ा-सा अपने माता-पिता का जो है आभार किया, फिर आप मॉर्निंग वॉक पे गए, आके आप जो रूटीन वर्क है उससे फिर उ उनको किया, फिर आपने हल्का-सा जो है योगा किया या एक्सरसाइज की। ये सब मिला के आप उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसपे रोज़ अगर 1 आवर टाइम सुबह देंगे तो यकीन मानिए कि 1 आवर का वो कम से कम 10 आवर आपको एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। तो आप कितना इसको कर रहे हैं, आप इसको अपना नोट कर सकते हैं पेपर पे कि 1 से 5 अंक तक कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको पहचानने में मदद मिलेगी। अगला जो है हमारा है कि आप एक पौष्टिक ब्रेकफ़ास्ट करिए जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी हों, जो हमारे प्रोटीन भी इसमें होना चाहिए, हमारे मल्टीविटामिन्स भी इसमें रहने चाहिए, हमारे इसमें फाइबर भी होना चाहिए, हमारे इसमें कैल्शियम भी होना चाहिए। जितने भी हमारे मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। इसको आप कितना कर रहे हैं, या फिर आप सुबह उठे और जो मन चाहा वो खा लिया, उससे नहीं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इस चीज़ को भी आप मेंशन करें। अगला कि आप जो भी दिन भर का काम करने वाले हैं, सुबह उठ के जब आपने अपना मॉर्निंग का अपना सारा काम कर लिया, उसके बाद एक लिस्ट बनाई कि आपको आज क्या करना है, अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, या कोई आपने पहले प्लान कर रखा तो उसको आप चेंज करिए, टू डू लिस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने आप को जो टाइम मैनेजमेंट है वो करने में बहुत मदद मिलेगी। इस समय सबसे बड़ी क्या होता है कि घर पे लोग रहते हैं तो बहुत लेज़ी हो जाते हैं। उनको मतलब लगता है कि मैं क्या करूँ? और जो काम होता है जिस समय फिर उस समय उनका दूसरा माइंड डाइवर्ट रहता है, क्योंकि उन्होंने टाइम पे वो चीज़ की नहीं होती, सब डिले होता रहता है। तो आप एक टू टू एक लिस्ट बनाएँ और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट करने से बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और इम्यूनिटी जो है आपकी बूस्ट होगी। ये मेंटल जो मैंने अभी आपको डायमेंशन बताया वो चारों उसी इसी का पार्ट हैं। अ, फिर आप विजुअलाइज़ करें अपनी सक्सेस के लिए। स्टूडेंट्स जैसे कर सकते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में कैसा परफ़ॉर्म करना है, मुझे अपने करियर में कैसा करना है, और जो सीनियर्स लोग हैं कि हाँ, मेरी सक्सेस का लेवल क्या है, वो सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो वो एक उसको विजुअलाइज़ करें कि मुझे क्या चीज़ चाहिए है, क्या चीज़ हमको अपनी नेगेटिविटी को हटानी है, जो कि हमारे सक्सेस में हर्डल्स बन रहे हैं, तो उसको भी आप अपने पॉइंट्स दें। स्टूडेंट्स से मैं बार-बार कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत अपने आप को जानने में, सेल्फ केयर करने में मदद मिलेगी। इसके बाद आता है कि टू डू डू ए गुड डीड। आप वो काम करिए जो अचानक हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो। कैसे कि आप निकले और आपने किसी की मदद कर दी। इस समय तो बहुत ज़्यादा आप सोशल साइट्स पे देखेंगे कि बहुत लोग परेशान हैं। आपने कुछ नहीं आप कर सकते हैं, आपने उसको हेल्पलाइन नंबर ही आपने दे दिया, या कुछ भी कोई सामान पहुँचा दिया, कुछ खाने का कर दिया। आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप कहें कि वो ये मेरे पेरेंट्स का काम है मेरा, लेकिन आप बहुत कुछ अपनी तरफ से जो आपके मेंटल लेवल है आपका, जो आपका फिजिकल लेवल है, उस पे आप बहुत सारी मदद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। कहा जाता है कि जितना आप देंगे भगवान उतना ही आपको वापस करेगा। तो ये करेंगे, इससे भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फिर जो माइंडफुल ईटिंग का है कि खाना खाइए तो ध्यान से खाइए। खाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे-तैसे बैठ गए और आपने जो मन चाहे वो खा लिया, नहीं। आपको अपने शरीर से प्यार करना है। अपने अगर बॉडी से आप प्यार नहीं करेंगे तो यकीन मानिए बॉडी जैसे कि इस समय हमारे साथ हो रहा है, वैसे ही बॉडी आपको परेशान करती रहेगी। तो कोशिश करिए कि सिस्टम से चलें। सिस्टम से चलने से बहुत आप देखेंगे कि जैसे कि मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप बहुत
हबड़-दबड़ जैसे कहते हैं हरीबाजी, जल्दीबाजी में नहीं खाना है, खाने के लिए आप इनफ टाइम उसको दीजिएगा। एक खाते समय हल्का-सा म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हैं और कोई टीवी नहीं देखेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करना कि खाना भी खा रहे हैं, आप लैपटॉप खोले हुए अपना काम भी कर रहे हैं, नहीं करना है। ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, सीधे से। और टेस्टी फूड बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जुबान होती है ना 3 इंच की जो हमारी जीभ होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी के लिए, लेकिन ये बॉडी को हार्मफुल रहता है। हम टेस्ट के पीछे भागते हैं और हमारे शरीर के साथ हम खिलवाड़ करते रहते हैं, क्योंकि जो पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक खाना होता है, वो टेस्टी नहीं उतना होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए परफेक्ट होता है। इसके अलावा आप प्रॉपर बैठ के टेबल पे बैठ के खाएँ, है ना? मतलब कहने का यही है कि आपका एक पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो कि आप खाने पे ध्यान दे सकें, इधर-उधर दिमाग ना रहे। अगला मैं इसमें कहूँगा ब्रीथ डीपली। ये सब आप करते हैं, दिन भर में कम से कम 3 बार आप जो है गहरी-गहरी साँसें लें। ये 5 से 7 मिनट तक एक्सरसाइज़ अगर आप करते हैं, खासकर अनुलोम-विलोम, आपने बहुत मालूम होगा अच्छे तरीके से, मैं उसपे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से आप दिन में अगर 3 से 4 बार अगर करेंगे, तो क्या होगा कि आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा और वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इस पे भी स्टूडेंट्स लोग पॉइंट्स दे सकते हैं कि वो कितना वर्क कर रहे हैं। अब आता है कि शेड्यूल वीकली जो है आप अपना बनाइए कि हाँ क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, एक वीकली प्लान तैयार कीजिए कि मुझे कैसे एन्जॉय करना है, कैसे अपने दोस्तों के साथ में भले ही हम ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, छोटे भाई-बहनों के साथ में कि वीक में कुछ स्पेशल करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी है जो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे मेंटल लेवल को और हमारे स्पिरिचुअल लेवल को ये सारे चीज़ों को डेवलप करे। तो आप इसका भी प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर रिटन आप उसको करें। आप केवल ओरल मत करिए। ओरल करने से क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें नहीं जा पाती हैं। मैं थोड़ा-सा इस पे बाद में भी चर्चा करूँगा। आप प्लान कर सकते हैं बाहर जाने का। अभी भले ही आप कहें कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप खुलेगा ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम नॉर्मल ज़िंदगी लाइफ़ को जिएँगे, तो आप उसके लिए एक प्लान कर लीजिए कि हमें कैसे जाना है, क्या-क्या साथ में ले जाना है और वहाँ पे क्या-क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है। उसको भी आप प्लान बनाएँ और उसको अपडेट करते रहें, सिचुएशन के हिसाब से क्योंकि इस कहा नहीं जा सकता, आप जाके पार्क में ही जा सकते हैं कि पार्क में 15 मिनट गए और उसमें आपने कैसे वहाँ के एन्जॉय करा। इसका भी आप प्लान कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है लेकिन इसको कर रहे हैं ज़रूर। आपका इससे भी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। फिर आपको जो चीज़ पसंद हो, वो करें। बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कहा जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा जो है वो कहता है मुझे पढ़ाई से नहीं फ्री हो पाता हूँ। लेकिन इस समय आपको स्ट्रेस से फ्री रहना है तो जो भी आपकी हॉबी है उसको डेवलप करिए, चाहे कुकिंग हो या म्यूज़िक हो, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। आप अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो सेवा का भाव इसमें उत्पन्न कर सकते हैं कि किसी की मदद करके, वो भी आपको डेवलप कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं और मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि कुछ एक भाषा, नई भाषा कोई सीखी जाए, इसमें बहुत अच्छा मौका है, आप नेट का यूज़ करते हुए कोई एक और लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद रहे। अब हम इसमें देखेंगे ग्रैटिट्यूड बहुत मतलब मैं इसको जो सबसे ज़्यादा मानूँगा इन पॉइंट्स में क्योंकि आपको जो ईश्वर ने दिया है, आपको जो आपके माता-पिता ने दिया है, जो सोसाइटी ने दिया है, जो कंट्री ने दिया है, जिस एनवायरनमेंट ने जो भी दिया है उसके लिए आप उसका आभार व्यक्त करें, थैंक्स बोलें। सुबह करें, शाम को करें। सुबह उठते क्षण आप ओरली आप उठें और 5 मिनट अपना टाइम उस ऊपर वाले को धन्यवाद दें कि आपने आज की ज़िंदगी मुझे दी है और ये प्रैक्टिस करते हुए आप दिन को आगे बढ़ाएँ और रात में सोने से पहले आप कुछ डायरी लिखें। वो गोल्डन डायरी बोली जाती है हमारे लोगों के टर्म्स में कि आप उसमें अपने ग्रैटिट्यूड करें मतलब आभार व्यक्त करें भगवान के लिए अपने जो आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उनके लिए और साथ में आप अपने ड्रीम्स को भी लिखें जो आपको चाहिए। और उसको प्रेज़ेंट टेंस में ही रखें। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका फ्यूचर बहुत मतलब सेटल होने लगता है क्योंकि आप
सब सिस्टम्स के थ्रू चलते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट दिया है कि इसको 1 से 5 स्टार देते हुए अपना ये 11 स्लाइड्स के ऊपर मुझे भेज सकते हैं, अपने मेंटर को भेज सकते हैं, या अपने क्लास में जो भी आपके सर हैं उनको भेज सकते हैं, जिससे कि आपका वेलनेस लेवल क्या है उसको जाना जा सके, समझा जा सके। अगर कोई इसमें कमी होती है तो उसपे सुधार कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, जब मैंने बोला कि कमी हो, तो अगर इंडिया में देखा जाए तो हेल्थ कंसर्न क्या है, बहुत ज़्यादा। डायबिटीज के मामले में हम वर्ल्ड में कैपिटल हैं। सबको अच्छे से मालूम है कि एक डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी बोला गया है कि 2030 तक जो है 190 मिलियन जो है वो डायबिटिक पेशेंट होंगे, केसेस इंडिया में ऐसे होंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। हार्ट डिजीज के अगर देखें आप तो 28.1% जो है टोटल डेथ होती है, उसमें 28.1 जो 2016 के आंकड़े के हिसाब से ये इतना रेट था। फिर आप अर्थराइटिस का देखेंगे तो इसमें भी एक डेटा आता है जो 22% से 29% के बीच में जॉइंट्स के जो जोड़ होता है, जो हमारे 60 साल से ऊपर के घर में होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खासकर महिलाओं के लिए ज्यादा हो रही है, जो कि 45% महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ओबेसिटी, आप देखिए घर बैठे हुए हैं इतने दिनों से और खाए जा रहे हैं और पता चला सबका वेट बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा है। पहले क्या होता है कि जो हम लोग अर्न करते पैसा कमाते हैं, कमाने के बाद फिर वो वैसा खाना खाते हैं उल्टा सीधा और फिर फैट गेन कर लेते हैं, फिर उसको कम करने के लिए फिर पैसा खत्म करते हैं। मतलब ये जिस साइकिल में हम लोग घूमते रहते हैं, तो इंडिया उसमें बहुत मेजर रोल कर रहा है कि ज्यादा बढ़ रहा है। फिर दूसरा आ जाता है कि आपका सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन की वजह से, बहुत स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इंडिया में ये सारी चीजें जो आज की नहीं है, ये 20-30 साल से इनको कहा जाता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल थोड़ा-सा इस पे आगे हम बात करेंगे कि हम वेलनेस पे बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पहले स्लाइड में हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारे ऊपर हमें मतलब यानी कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो आप देखेंगे कि फूड अडल्ट्रेशन, उसमें सब नकली चीजें मिलाई जा रही हैं। आपको खासकर वेजिटेबल्स में देखेंगे, या न्यूट्रिशन गैप है, हमारी बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी भी वजह है पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप जॉब करते हैं, जॉब की टेंशन इस समय खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिनकी जॉब गई है, उनके लिए बहुत स्ट्रेस का है। तो ये टोटल मिला के वेलनेस की जरूरत अब हमें क्यों ऐसी पड़ी है, क्योंकि ये तो पक्की बात मानेंगे आपकी, जो कोविड-19 है ने पूरे हेल्थ सेक्टर में एक परिवर्तन की एक नई लहर उत्पन्न कर दी है, ठीक है? इस पैंडेमिक ने हमारी जीवन शैली को बहुत बड़ा झटका दिया है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है आज के समय में कि हमें अपने मेंटल फिजिकल इमोशनल और क्या कहते हैं मेंटल, इन पे हमें वर्क करना है। तो वाई वेलनेस, वेलनेस की वजह और भी हैं, लेकिन अभी हम पहले अपने न्यूट्रिशन की तरफ हम बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि अगर जो पिछले स्लाइड में बताया कि ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से हमें कौन-कौन सी स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं और जिससे हमारे ऑर्गन्स इफेक्टिव होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ होता है, जो हम खराब खाना खाने से या मिलावटी खाना, पेस्टिसाइड से, फूड से होता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज होता है, आपका हार्ट रेट डिसबैलेंस रहता है, ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस रहता है, ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, ये सारी उसकी लाइफस्टाइल की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। अच्छे से आप लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ की। पूर्ण रूप से जो है हमारी वेलनेस क्या है इस पे। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें जीवन जीने के लिए कमाना पैसा पैदा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। हम अपने जीविका
चला पाते हैं, अपने परिवार चला पाते हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि हमारा शरीर के लिए भी हमें जो है अर्न करना पड़ता है। अर्न के सेंस मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपका शरीर चलेगा। और ये यकीन मानिए कि जो बॉडी हमारी है, वो फ्यूचर का सबसे बड़ा एसेट्स होती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी नहीं है, तो हम एक अच्छा हेल्दी फ्यूचर नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं। हम चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे हों, हम अपने आगे की पीढ़ी को एक हेल्दी फ्यूचर नहीं दे सकते हैं, अगर हमारी ही शरीर कमज़ोर है। तो यहाँ पे अर्न की मैं बात कर रहा था, इसमें भी हमारे बॉडी के लिए भी अर्न बहुत ज़रूरी होता है। ई फॉर यहाँ पे एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट और एन फॉर न्यूट्रिशन, अर्न। अब एक्सरसाइज़ में आप क्या करना है, आपको सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुबह आप एक करीब-करीब मेरा जो मैं करता हूँ या मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सेशंस में कि आप हर दिन 40 मिनट का समय अपने एक्सरसाइज पे आप दीजिए, जिसमें से 20 मिनट आप योगा करें या हल्का-फुल्का जो एक्सरसाइज होती है उस टाइप का करें। कोई मेडिटेशन आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगले जो जो 20 मिनट बाकी हैं, उसमें आप उतना हार्ड एक्सरसाइज करें कि आपका पसीना निकले। आप मतलब आप दौड़ें या जो भी आपको एक्सरसाइज जो आपको पसीना निकालती हो, वो आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे क्या कहते हैं रेडिकल्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, वो उससे खत्म होते हैं और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। एक्सरसाइज में आप बहुत सारी चीज़ें मैं क्या बताऊँ, इसमें आप सबको मालूम है अच्छे से कि क्या-क्या करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। फिर एटीट्यूड की बात आती है। एटीट्यूड हमारा बहुत मायने रखता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अगर क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में देखेंगे तो खासकर अभी नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। आप अगर टेलीविज़न चैनल खोलेंगे, कोई अखबार पढ़ेंगे तो आपको नेगेटिव ही नेगेटिव बहुत सारे हमने अपने लोगों को खोया है, तो उनका दुःख देख के नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो क्या होता है इसमें इस पे हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, उतना हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। उसके लिए आपको सारा बता चुका हूँ कि आपको मेडिटेशन आप उसमें कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एटीट्यूड को आप पॉजिटिव बनाने के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप सीरीज़ सुन सकते हैं मोटिवेशनल। खासकर आप सोते समय जो है, आप अगर अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आप आपका एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप होगा। आप की संगत जो है, ऐसे लोग साथ में होने चाहिए जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, नेगेटिव वालों को आप दूर रहें, उनको कोशिश करें जैसे आप अपना इस समय हो तो टीवी मत देखें, न्यूज़ तो खासकर बिल्कुल मत देखें, क्योंकि न्यूज़ देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को ज़रूर नुकसान पहुँचेगा। नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से जो हमारे रेडिकल्स डेवलप होते हैं, हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं, वो इसी वजह से तो उसको दूर करना है। रेस्ट रेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। मैं अगली स्लाइड्स पे आपको इसको बताऊँगा कि हमारी लाइफ में नींद क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा खासकर अभी के समय में, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है? हमारे ब्रेन फंक्शन को जो ये बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्स जो बहुत ज़्यादा सोचने की है, उसकी पावर को रिड्यूस करता है। सीखने को ल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सब में हमारी नींद जो है बहुत लाभदायक रहती है। खासकर मेंटल हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब सोना भी मैं क्या बताऊँ कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, रात-रात भर जागेंगे। मेरा भतीजा है, तो वो रात भर 3-4 बजे तक जागेगा और फिर मतलब अपनी पढ़ाई करता है और फिर सुबह 10-11 बजे। तो ये खासकर स्टूडेंट्स के साथ में या जो यंग जनरेशन है, उसके साथ में ज़्यादा होता है कि वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। कम से कम आपको 8 घंटे की एक हेल्दी स्लीप चाहिए होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अपने लिए आप नुकसान कर रहे हैं। हम वापस इसमें आते हैं न्यूट्रिशनल कि ये हमारा न्यूट्रिशन कि हम क्या खाते हैं। हम अप दिन भर में क्या ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारे फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, हेल्थ हमारी बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज़ एटीट्यूड और रेस्ट ये 3 चीज़ें होती हैं, ये इसका रोल हमारे लाइफ में या हमारे डे बाय डे के रूटीन वर्क में अगर इसका देखेंगे तो 30% ये हमारे साथ सहयोग करता है।
और बाकी 70% जो है हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, हेल्दी बनाए रखता है। 30% एक्सरसाइज, एटीट्यूड और रेस्ट, ये हमारे हाथ में है, इनको हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम पे करके, एटीट्यूड डेवलप करके और प्रॉपर रेस्ट करके, जो कि स्ट्रेस को दूर करे, इन तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन का हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है हम लोग, कि हमें क्या खाना चाहिए। बहुत सारे मैंने अभी पहले बोला था कि जो हमारी जीभ है ना, ये टेस्ट जो 3 इंच के जो आँकड़न होता है, ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में कभी-कभी डाल देता है। तो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो इसमें 7 एलिमेंट्स हमारे रहते हैं। एक मिनट, इसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर, वाटर। हम कुछ भी खाना खाएँ दिन भर में, हमारी बॉडी यही चीज़ें ढूँढती है, उसको टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। उसको पिज़्ज़ा, बर्गर से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई भी ऐसा खाना फास्ट फूड से नहीं मतलब है। वो जहाँ आपने खाना लिया और हमारी बॉडी प्रोटीन्स ढूँढने लगती है, विटामिन्स ढूँढने लगती है, फाइबर, वाटर। वाटर कितना लेना चाहिए, वो सबको मालूम है कि 4 लीटर पानी हमको पीना चाहिए। ये हो सकता है कि गर्मी में थोड़ी मात्रा उसकी ज़्यादा हो सकती है और ठंड में कम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें रहती हैं हमारे शरीर के लिए। शरीर हमें हमारी जो डेवलपमेंट है, या शरीर हमसे यही डिमांड करता है। इसमें क्या होता है कि 7 बताया कि न्यूट्रिशन जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपको पहले बता चुके। प्रोटीन क्या होता है कि हमारी बॉडी जितना हमारा वेट होता है पर केजी के लिए पर ग्राम हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सपोज़ मान लीजिए कि अगर मेरा वेट 65 केजी है, तो हमें 65 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी है। वो 65 हमको अपने खाने से लेना होता है, लेकिन जिस तरीके से हम दिन भर में कुछ खाते हैं, तो उससे लगता नहीं कि आप 65 ग्राम हम प्रोटीन ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम्पल हम दें कि घर में दाल बनी और दाल में, या आपका राजमा ले लें, उसमें कहा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। होता सोयाबीन में भी है, लेकिन अगर राजमा बना और 100 ग्राम पकाया गया, तो उसमें तो कम से कम 5-7 लोग खाते हैं। अब 100 ग्राम में पर व्यक्ति के हिस्से में कितने ग्राम का प्रोटीन आया, आप इमेजिन करिए। तो 1 दिन के हिसाब से 5 से 7 ग्राम से ज़्यादा नहीं बनता है जाके, 8 ग्राम हो जाएगा। हमें चाहिए है पर ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको। तो इसको ध्यान रखना है। 13 विटामिन्स जो की मात्रा जो होती है, इसको बहुत थोड़ा-थोड़ा चाहिए होता है विटामिन्स को, लेकिन रिक्वायरमेंट है। इनके बिना अगर आप इनको नहीं पूरा करेंगे, तो आप बहुत तरीके की प्रॉब्लम से, डिज़ीज़ से घिर जाएँगे। ठीक है? इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 सबसे ज़्यादा रहती है। ए, बी, सी, डी, के और ई के अलावा। फिर मिनरल्स में आ जाते हैं, आयरन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनकी बहुत ज़्यादा हमें मात्रा नहीं चाहिए होती, लेकिन मात्रा चाहिए होती है, जो कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स को फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोडियम, आयोडीन एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स पर डे हमें 300 ग्राम चाहिए है, फैट हमें 20 ग्राम चाहिए है। फैट का क्या काम है एक्चुअली, कि हम लोग जो ऑयल का करते हैं, वो कहीं पता चला कि सब्जी में अलग पड़ेगा, फिर हम लोग देसी घी खाते हैं या बटर ले लिया, इन सब चीज़ों को मिला के तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइबर हमारी बॉडी की जो है आर्गन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर बनाता है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको बाहर करता है। और वाटर 4 लीटर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। न्यूट्रिशनल रूप से अगर हम अपने सारे पार्ट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि कोविड के समय इन पे बहुत ज़्यादा काम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे क्या-क्या ज़रूरत होती है हेयर के लिए, आपको प्रोटीन और विटामिन बी की। आप कितना भी तरीके का ऐड देखते होंगे कि हाँ, अ, उसमें आता होगा कि प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन युक्त तो शैम्पू करेंगे तो आपके बाल हो जाएँगे, नहीं, उससे नहीं, आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना है और प्रोटीन की मात्रा आपको सुनिश्चित करनी है। फिर ब्रेन है, उसमें विटामिन बी6 है, बी12 है,
फोलिक एसिड है, आई के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, दांत टीथ के लिए कैल्शियम फास्फोरस है, बोन्स के लिए भी कैल्शियम फास्फोरस रहता है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें आयोडीन है, विटामिन बी है, ओमेगा 3 है, वाटर है। ओमेगा के विषय में भी हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। फिर हार्ट के लिए प्रोटीन है, ओमेगा 3, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और एल्किन जो है, ये सब जरूरत है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 6 हमारे बॉडी में अच्छे मतलब ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको एक तरीके से ओमेगा 6 स्टोर करता है उनको, तो ओमेगा 3 उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसका मात्रा रहती है 1:7 के आसपास, इसकी मात्रा मेंटेन करनी पड़ती है। फिर आता है स्टमक के लिए बी, आपको विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स जरूरत होती है। लंग्स के लिए विटामिन सी है, ई है, किडनी के लिए विटामिन सी, ई। अब मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन चीजों की हमारे शरीर को बहुत जरूरत है। अगर हमने इन चीजों को नहीं दिया, स्किन के लिए जैसे प्रोटीन है, विटामिन डी है, विटामिन ई, स्किन हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट होता है, तो इसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब किसी ने कहा है कि nobody can accurately define your wellness level better than you। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आपका वेलनेस लेवल क्या है। तभी मैंने स्टूडेंट्स लोगों को बोला कि आप अपना खुद जांचिए, खुद उसको परखिए कि आपका वेलनेस लेवल कितना है। वो एक्सरसाइज के माध्यम से, केवल प्रैक्टिस करना नहीं है, आपको जीवन में उसको उतारना भी है। तो योर इंस्टीट्यूशन आर सेंडिंग, मतलब आपको छोटे-छोटे क्लूज मिलते हैं। अगर आपके कोई शरीर में डिफिशियंसी होती, कुछ भी कमी होती, तो बॉडी आपको क्लूज भेजता है कि आप सतर्क हो जाइए। आपको मिलते रहते हैं रोज, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। सपोज मान लो हेडेक हुआ, सर दर्द हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस हो गया। सर दर्द क्यों हो रहा है? एक पेन किलर ले लिया, कोई ऐसा टेबलेट लिया या बाम लगा लिया कि हाँ भाई मेरा सर दर्द ठीक हो गया। नहीं है, आपकी वो जो सिग्नल आए उसको आप समझ नहीं पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बता रहा हूँ, आगे डिफिशियंसी में क्या है कि अगर आपके बालों में आपको प्रोटीन और विटामिन बी की कमी है, तो आपके बाल गिरने लगेंगे। लोगों के बाल जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें उनमें कमी होती है और वो दूसरी चीजें करते रहेंगे, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। ब्रेन के लिए, ब्रेन में फोलिक एसिड है, विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 12 है, इन सब की बहुत जरूरत होती है। अगर ये नहीं रहेंगे, हेडेक होगा, माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, धीरे धीरे आपका हेडेक होता रहेगा और वो जब 2-4 महीने हो जाएगा, तो वो ब्रेन ट्यूमर बन सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ये धीरे-धीरे हमको जो भी सिग्नल हमारी बॉडी दे उसको नोट कर लीजिए और उस पे आप काम कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। आई के लिए जो है विटामिन ए है, टीथ के लिए आपका फास्फोरस, कैल्शियम बताया, तो टूथ जो है डिजीज हो जाते हैं। हार्ट के लिए प्रोटीन है, ओमेगा, विटामिन बी, वो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई और या लो रहता है। गैस की प्रॉब्लम, अस्थमा, मैं सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ कि स्किन डिजीज, अगर आप ये चीज नहीं पूरी करेंगे, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शरीर इसी को जानता है। शरीर को ये नहीं मतलब है कि आपने पिज्जा कौन सा खाया, शरीर को ये मतलब नहीं है कि आपने कितना हेल्दी फूड ले रहे हैं। आप दूध भी ले रहे हैं, तो अगर दूध वो मिल्क आपने मिलावटी वाला लिया तो वो बेकार है। आपको प्योर चाहिए। हमारी बॉडी जो है वो इन मिनरल्स को ढूंढती है, इन विटामिन को ढूंढती है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम इन डिफिशियंसी में मतलब गिरते जाएंगे। अब आप जानते हैं कि हमारा बॉडी का कैसे फॉर्मेशन होता है, कि सेल होता है, सबसे यूनिट इसकी होती है। सेल, सेल से टिश्यू डेवलप होते हैं और फिर टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गेनल सिस्टम डेवलप होता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कि एक बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत छोटे से सेल्स पे हमें काम करना चाहिए। हमें क्या होता है कि कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हमको हो गई, तब हम उसके ऑर्गेनल जो डिसऑर्डर है उस पे वर्क करने लगते हैं, उस पे वर्क करते हैं, जबकि उसकी मूल प्रॉब्लम कहाँ पे है उस पे वर्क नहीं करते हैं। मैं इस पे अभी कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा। जैसे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनल डिसऑर्डर क्या होता है, उसी के थ्रू टिश्यू और सेल, टिश्यू और ऑर्गन के विषय में
कि आप अगर देखेंगे 1980 से पहले, 1980 से पहले जो हमारी बीच में सोसाइटी में जो डिजीज होती थी, वो प्लेग होता था, चिकन पॉक्स है, कालरा, टीबी, डायरिया, ये सारी चीजें, ये जो भी बीमारी होती थी, इनका डॉक्टरों ने इनका सलूशन खोजा, और ये क्या था कि ये वायरस से या बैक्टीरिया से, तो उसके लिए उन्होंने अलग-अलग से टीके बन गए, वैक्सीनेशन होने लगा। अब बच्चा कोई बर्थ पैदा होता है तो उसको वो टीके लगने शुरू हो जाते हैं। उस 1 महीने से लेके वो पैदा होने के दिन से लेके और वो 10-15 साल तक सारे टीके लग गए, और इस टाइप की बीमारी अब नहीं देखने को हमको मिलती है, या बहुत रेयर होती है, क्योंकि इसके ऊपर काबू पा लिया गया है, उस पे कंट्रोल हमने कर लिया। लेकिन जो 1980s के बाद की जो है, वो आप देखेंगे ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है हमारी। सीबीडी, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, डायबिटीज़, डब्ल्यू ये सारी जो बीमारियां आप देख रहे होंगे, ये 80s के बाद में डेवलप हुई हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि एक राइट साइड में अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रीजन क्या होता है कि हम लोग सब उल्टा-सीधा खाते हैं, है ना? बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सिर्फ 3 इंच की जो जीभ है, इसकी वजह से हमारे को सब झेलना पड़ता है। इसमें क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है, बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि इन बीमारियों को डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो इनका इलाज नहीं है। इलाज मतलब ये है कि ये बीमारियों को डॉक्टर मैनेज करता है। उनको मैनेज करेगा कि हाँ भाई, आप ये है प्रॉब्लम तो इसको ये खाइए तो कम हो जाएगा, ये खाइए, लेकिन आपको दिन पर दिन क्या होता है, आप मेडिसिन लेते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। फिर भी डॉक्टर क्या करता है कि वो उसको दवाई को डोज़ बढ़ाता जाता है, और हमारी बॉडी उस मतलब हैप्चुअल हो जाती है। बाद में वो दवाई हमारे पर असर नहीं करती है। मतलब कहने का ये है कि इन दवाइयों ये जो डिज़ीज़ हैं, उनमें आप कोई कहे कि बिल्कुल सही हो जाता है, मुझे यकीन नहीं होता है। हाँ, कम हो सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं हो पाता है। ठीक है? तो अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दे बताना चाहूँगा कि जो टिश्यूज़ की मैंने बात की कि हमारी बॉडी में कई सारे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप इम्यूनिटी सिस्टम से ले सकते हैं, या डायबिटिक का आप ले सकते हैं, या बोन का ले सकते हैं। हम डायबिटिक का इसमें एक आपको साथ रखता हूँ कि एक्चुअली जो शुगर की बीमारी होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके साथ होता क्या है? जो पैंक्रियाज़ है उसमें अल्फा कण और बीटा कण 2 प्रोड्यूस होते हैं। बीटा कण जो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन आगे बढ़ के शुगर को, और फिर वो शुगर अलग-अलग रूप में जो बॉडी की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी डेवलप करती है। उससे पहले ब्लड में जाती है, और एनर्जी जब हमें मिलती है तो हमारा बॉडी में जब खून के थ्रू वो एनर्जी रन करती है तो हम कोई काम कर पाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप सबको मालूम है उसमें। अब किसी को डायबिटिक हो गया, वो पेशेंट है, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने क्या किया कि इंसुलिन पहले दवाई दी, और कि हाँ, इंसुलिन के लेवल को दवाई मेडिसिन से वो करता है, सेट करने की कोशिश करता है। आपसे कहता है कि एक्सरसाइज़ आप करिए, उसके बाद में कहता है कि आप बिल्कुल नहीं लेंगे, और फिर वो कुछ अपनी मेडिसिन देता है, कुछ साल्ट देता है, एक कॉमन साल्ट होता है। एलोपैथ में ये चीज़ है, लेकिन वजह ये है कि जो बीमारी है ये कम से कम 8 साल में उभर पाती है। होता क्या है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, बीटा जो पैंक्रियाज़ है, जो उसके लिए मिनरल्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वो हम पूरा नहीं करते हैं। वो डिफिशिएंसी बन क्रिएट हो जाती है, और फिर अ, इस तरीके से ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और डॉक्टर उसको मैनेज करता रहता है, दवाई फिर थोड़ा-सा डोज़ बढ़ा दिया, थोड़ा-सा बढ़ा दिया। लेकिन फाइनली जाके क्या होता है कि जो आदमी पीड़ित है, वो पैसा लगाता जा रहा है और उसका शरीर सफ़र करता जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अपने सतर्क रहिए, अपने सेल्स पे, अपने जो सिग्नल बॉडी दे रही है, उस पे आप उसको पूरा करते रहिए। ठीक है? अब खाना कैसे मिलता है? शायद 20 देखेंगे तो खेतों से आया और वो घरों में सीधे आता था, अदरवाइज़ वो सड़ जाता था, हमारे यूज़ का नहीं रहता था, हम उसको 24 घंटे में
यूज कर लेते थे या करने की कोशिश रहती थी, 100% न्यूट्रिशन जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये NER का मतलब है न्यूट्रिशन एवोपोरेशन रेट, मतलब न्यूट्रिशन उड़ जाते हैं। एक बहुत हिंदी में अगर कहूँ तो उड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप खेतों से सब्जी या कोई अनाज या कुछ भी आया, आने के बाद में फिर वो जाके बाजार में गया, जो बड़ी बाजार होती है वहाँ गया, वहाँ से फिर वो अगली उससे छोटी वाली बाजार में गया, फिर बिग बाजार में आया, बड़े-बड़े स्टोर्स में आया, वहाँ से हम गए खरीद के लाए और लाके हमने फ्रिज में उसको रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद क्योंकि भाई टाइम नहीं हमारे पास है, हमने 1 हफ्ते की सब्जी लेके ले आए और उसको फ्रिज में डाल दिया। डाल के फिर मन के हिसाब से बनाएँगे, पकाएँगे। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं बहुत इसमें कि खाना खाने के बाद में आपको मिला क्या, आप इसको सोचिएगा। क्योंकि जब खेतों से आपका फल या वेजिटेबल्स आपको आया, आने के 24 घंटे के अंदर अगर उसका यूज़ होता है तो 100% न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो बाज़ार में जाता है, बाज़ार से फिर छोटे शहरों से या जहाँ से आता है आपके पास तक आया, तो वो 48 घंटे हो गए, तब तक रह गया वो 70% न्यूट्रिशन उसमें। फिर उसके बाद आप उसको लाए और लाके आपने फ्रिज में डाल दिया। डाल देने के बाद में वो रह गया 40%। तो जितना भी आपने चीज़ें ली हैं, उसका न्यूट्रिशन आपको 40% मिला। वो तब की कंडीशन है जब मैं नॉर्मल इस चीज़ को मान रहा हूँ। फिर इसमें पेस्टिसाइड्स हो गए, बहुत तरीके से खादें डालते हैं, जो मिलावटी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको झेलना है। तो मैं आपको यहाँ पे डिमोरलाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन सच है ये। सच ये है कि हमारे पास तक थाली से हमारे मुँह तक खाना पहुँचते-पहुँचते वो कितना न्यूट्रिशन रह जाता है, आप जानते हैं। और हम लोग इसको इग्नोर करते चलते जाते हैं और इग्नोर करने की वजह से हमारे शरीर उतना इम्यूनिटी पावर को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पैंडेमिक के समय खासकर इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गलत खाएँगे तो हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने कि कोरोना उनको हुआ, वो क्वारंटाइन रहे, सही हो गए और बाद में फिर वो उनके साथ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए। वजह क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाई। वो तत्काल के लिए, थोड़े समय के लिए जब तक आपने वो टैबलेट ली या जो भी मेडिसिन दवाई डॉक्टर ने दिया, वो उसमें थोड़े दिन तक रहा, फिर वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि आपको ये कैसे चीज़ पूरी होनी चाहिए, इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो आप दिन भर में आप जो खाना खा रहे हैं, अगर आपके सारे आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं या न्यूट्रिशन मिल रहा है, तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, कमी है, आपको लग रही है, तो उसको आपको पूरा करने के लिए जो है फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके, आपके ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन कर सकें। यहाँ पे है एक जितना आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपको बेस्ट इंटरेस्ट आपको रिटर्न में वही मिलेगा, आपको शरीर उतना अच्छा मिलेगा जितना आप अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे बताएँगे कि सप्लीमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में 3 टाइप के हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिशन जिनसे हमें मिलता है, वो सिंथेटिक हैं, हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं। सिंथेटिक वाले में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लिख देता है। अभी बहुत सारे लोगों को रहा है कि डिज़ीज़ मतलब यानी कि कोरोना के समय में कि वीकनेस बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। कि सही भी हो गए लेकिन वीकनेस नहीं जाती है, वो मंथ टू मंथ उनको फ़ील होती है। तो उसमें डॉक्टर ने दवाई दी और बाद में फिर उन्होंने जो लिखा, आपको कैल्शियम दे देगा, आपको प्रोटीन बोलेगा लेने के लिए, ठीक है? आपको आयरन देगा, अब हॉर्लिक्स है, मतलब कैम वो जो चीज़ें देता है वो दे रहा है, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, वो मेडिसिन है, वो उसके फ़ॉर्मूला हैं, वो केमिकल है। केमिकल से बनाया गया वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में जाती हैं और शरीर हमारा केमिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। इस चीज़ को अच्छे से हमें समझना चाहिए। फिर उस कैफ जो वो चीज़ें देते हैं, जो सिंथेटिक होती हैं, वो प 25% एब्ज़ॉर्ब होती हैं केवल हमारी बॉडी में और हालाँकि उनकी कीमत कम रहती है, लेकिन शरीर को क्या मिला, ये आपको सोचना चाहिए। उसके बाद नंबर मार्केट में आता है हर्बल का। हर्बल ये उससे बेहतर होते हैं, सिंथेटिक से बढ़िया होते हैं और ये नेचुरल इंग्रीडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। ये बढ़िया हैं, उससे महँगे हैं, सिंथेटिक से थोड़े महँगे होते हैं।
लेकिन इनके साथ भी दिक्कत ये है कि इनको फार्मर उगाता है, ठीक है। अब फार्मर क्या करता है कि आप उसके ऊपर निगरानी नहीं रख पाते हैं, तो फार्मर पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, तो तमाम तरीके के केमिकल्स उसमें डालता है, मिलाता है और वो आप तक पहुँचते हैं। तो मतलब प्योरिटी की आप कोई गारंटी नहीं कर सकते कि अब वो प्योर है कि नहीं है, ठीक है। वो 50% एब्ज़ॉर्ब हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। हालाँकि सिंथेटिक वाले से रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उतना यूज़फुल बॉडी में नहीं होता। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप हिमालय है, डाबर है, पतंजलि है, कई सारे नाम आप इसमें ले सकते हैं, ये देते हैं। अच्छा इनका रिज़ल्ट रहता है, लेकिन बात वही आती है कि ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, कैसे वो आप तक बन के पहुँचते हैं, उस प्रोसेस में फ़ॉल्ट महसूस होता है कि 100% वो हमारी बॉडी के लिए नहीं फ़ायदेमंद होते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक, ये जो है इसमें फ्रूट और वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट करके जो है उसमें से न्यूट्रिशन हमारे निकाल के बनते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के लिए जो मुझे लगता है कि वो एक कंपनी है जो कि उसके पास 6800 एकड़ अपना जो है फार्म, ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जहाँ पे वो खेती करते हैं। 500 साइंटिस्ट उनके पास, 57 रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी लैब्स हैं, जो कि वर्क कर रहे हैं। इसके लिए एक डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग थे, ये चीन में थे, फिर बाद में अमेरिका चले गए। उन्होंने 1931 में जो है न्यूट्रीलाइट करके एक अपनी कंपनी को डेवलप किया था, और उन्होंने उस चीज़ को उस समय कॉन्सेप्ट किया कि हम जो भी चीज़ यूज़ करें वो 100% न्यूट्रिशन उसमें हो, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, ठीक है। तो एक कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो न्यूट्रीलाइट है। न्यूट्रीलाइट के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। सर को भी मैंने बताया है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। इसमें क्यों हम न्यूट्रीलाइट के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये होल प्लांट है। ये प्लांट बेस्ड ही प्रोडक्ट इनके बनते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, नेचुरल ये होते हैं, ठीक है। इनके जो प्रोसेस है, जो कंपनी है, वो अपने फार्मर को देखती है, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से उन चीज़ों को वो मतलब प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। इसमें आखिर में मैं आ रहा हूँ, तो व्हाई इम्यूनिटी बास्केट? हमें इस समय पैंडेमिक के समय स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को, टीचर्स को, हमको सबको इम्यूनिटी क्यों हमें ज़रूरत है? तो उसकी मैंने ज़रूरत बता दी, वो मुझे मिलेंगे कैसे? कैसे इसमें होता है? अगर आप ये देखेंगे 11 विटामिन्स की जो मैंने बात की थी, उसमें ये सारे के सारे हमारे ज़रूरी हैं। फिर मिनरल्स, ये भी 11 में 11 मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, ठीक है? तो ये डेली प्रोडक्ट एक रहता है जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, खासकर पैंडेमिक के समय। फिर कुछ मैंने छोटे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी हमें ज़रूरत है, प्रोटीन ज़रूरत है, आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। वसाका जो है गले के लिए आपका श्वसन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, गार्लिक है, तुलसी, ठीक है? और ओमेगा जो मैंने बताया, ओमेगा 3, ये बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी है, मैं उतने उसमें नहीं जाना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आपके कोई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो या कुछ इसमें जानना चाहते हो या कोई सेशन के लिए आप अगर ज़रूरत समझते हो, तो मैं आपके लिए हरदम तैयार हूँ। कभी भी मेरे से आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और सर के थ्रू भी आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर ईमेल के साथ में दे दिया है। और बॉडी आपकी है, हेल्थ आपकी है। अगर आप हेल्थ वो करते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा न्यूट्रीलाइट के थ्रू आप आगे बढ़िए। बाकी जो है आपके पास मैंने बता रहा था। इसके अलावा मैं लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स नहीं, जो आगे की जनरेशन के लिए, कि ये एम्प्लॉयमेंट इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस वेलनेस सेक्टर में। कैसे है? ये पहले से थी,
ये पेंडेमिक के समय ये बहुत जल्दी उभर के आ गई। आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि ये 2015 में $1 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री थी वर्ल्ड भर में। अब फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में उन्होंने रिलीज़ की थी कि ये बढ़ के कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी। कि मतलब आप समझ सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी कितनी ज़्यादा है। इंडिया में ही ये करीब-करीब 45% इंडिया में ही इसका इंडस्ट्री डेवलप हो रही। तो ये कि बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों है? आप देखेंगे पैंडेमिक के समय में हमारी ये इंडस्ट्रीज जो हैं डाउन हुई हैं। इनके साथ में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जॉब लॉस हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने आगे की 4-5 साल की प्लान करके अगर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक पार्ट टाइम के तौर पे बहुत अच्छा ये अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चीज़ करनी चाहिए जिसका स्कोप आगे हो और जैसा आज के समय में पैंडेमिक का चल रहा है कोई नहीं कह सकता है कि ये 1 महीने में खत्म होगा, 1 साल में खत्म होगा या 3 साल में। इसका जो आफ्टर कोविड का इफ़ेक्ट्स है वो हमें 2, 3, 4 साल अ, उससे गुज़रना ही पड़ेगा। तो वैसे में ये बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है। अगर कोई इससे आपको डिटेल्स ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे एक सेशन कर सकते हैं, हम आपके लिए अलग से कर देंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अ, आप एन्जॉय कीजिए और मुझे लगता है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अब हम सर से बैक टू होस्ट जाना चाहेंगे। मेरी तरफ से प्रेज़ेंटेशन का यहीं तक। Thank you so much, sir. That was indeed enlightening and helpful. Now, I would like to call upon Ms. Mudita Raj, Assistant Professor, DME Media School, to moderate the question answer session. Thank you, sir, for such an insightful session. I'm sure most of our students will benefit from the insights that you have shared. Our students have some questions. Our first question is from Samuel Raj. Even though music helps in dealing with depression, but mostly in depression we listen to sad songs. That is further distressing. How does one deal with that? Sir? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप सैड सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं? और आपको किस चीज़ से किस स्ट्रेस से निपटना है? आपके सामने स्ट्रेस कौन-सा बड़ा है? भाई सैड सॉन्ग सुनने की वजह क्या होगी? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये पैंडेमिक का जो स्ट्रेस है वो मैं नहीं झेल सकता, तो उसके लिए मुझे म्यूज़िक अगर सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोशिश करिए सैड सॉन्ग मत सुनिए। हाँ, आप अगर है तो भजन सुन सकते हैं। नहीं आप ऐसे आप म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते हैं तो आप कोई इमोशनल किसी के थॉट्स मोटिवेशनल थॉट्स आप उसको सुनें, तो आप दोनों चीज़ों से बच जाएँगे। Sir, our next question is from Pratyaksh. He wants to know how to fix our sleeping schedule. सीपी सॉरी? How to fix our sleeping schedule. स्लीपिंग शेड्यूल ओके, ओके। ओके, स्लीपिंग शेड्यूल कैसे आप सेट करें? उसमें देखिए मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ के लिए टाइम फिक्स है, आपको फिक्स करना है, खासकर इस समय पैंडेमिक समय तो आप कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास बहाना होता है कि मुझे सुबह 7:30 या 8:30 से क्लास है, मुझे जल्दी जाना है, हम नहीं कर पाएँगे। फिर आपको शाम को कोई ट्यूशन लेनी है, नहीं अगर करनी है या कोई और एक्टिविटीज़ है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व थे आप उसमें रखे हुए। लेकिन इस समय तो स्लीपिंग के लिए आप बहुत अच्छा समय निकाल सकते हैं कि आपको 8 आवर्स अगर स्लीपिंग आप नहीं देंगे, तो आप यकीन माने कि आप लाइफ में जितना अचीव नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं। आपको जो टाइम है 10:30 आप मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड करें कि 10:30 आपको सोने के लिए जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने उसके बाद में थोड़ा-सा लगता है कि नहीं इतनी जल्दी सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारा मोबाइल फ़ोन होता है। ये हम इसकी लत से बहुत गंदी तरीके से जुड़े होते हैं। इसको सोने से 30 मिनट पहले आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप मानिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं। इसको 30 मिनट पहले छोड़ दीजिए। आप 15 मिनट कुछ डायरी लिखिए। जो मैंने बताया कि आप एक उसमें ग्रैटिट्यूड का कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स का लिख सकते हैं। आप लिखिए और फिर सुबह आप 5:30 पे आप उठें।
क्योंकि आपको सुबह का भी मजा लेना है। सुबह 2 घंटे का आप एंजॉय अगर लेंगे तो वो आपको पूरी होल डे आपको एनर्जी देगा। तो 8 घंटे आप वही टाइम अपना फिक्स करें, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे स्टडी हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी नहीं करना। Sir, talking about the gratitude writing in the diary, Muskan has a question. She wants to know, does writing a gratitude or diary help in increasing the happiness index? पूरा पूरा करती है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कैसे करती है, थोड़ा सा मैं बताने के लिए। जो हमारा माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्शन करता है। हमने कहा कि जो है ये मुझे प्रेजेंटेशन देना है, ये कॉन्शियस माइंड हमारा वर्क कर रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ ये कॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है। लेकिन जब सर ने 3-4 दिन पहले बात की कि हाँ एक इस पे हम टॉपिक पे करते हैं, तो करने के बाद में इससे क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, सर ने बोल दिया अब वो चीज कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। सबकॉन्शियस माइंड में जाने से क्या होता है कि उसी तरीके से होता है कि जैसे कंप्यूटर में रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी के लिए, और आपके लिए हार्ड डिस्क होती है परमानेंट के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चीज जाएगी तो कॉन्शियस माइंड उसको जल्दी से रिकॉल कर पाता है। अदरवाइज क्या होगा कि कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, फिर वो भूल जाएगा, फिर एक्टिव होगा, फिर भूल जाएगा। तो जब आप लिखते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो शब्द को नहीं पकड़ता है, ये आपको मालूम होगा। हम इमेज को पकड़ते हैं, हमारा ब्रेन जो है इमेज से जुड़ा होता है। बच्चों को अगर हम कोई चीज सिखाते हैं तो हम अगर उनको ABCD सिखाएंगे तो वो नहीं उतनी जल्दी सीखेंगे। जब हम A फॉर एप्पल एप्पल दिखाएंगे तो वो A तुरंत समझ में जाता है। तो हमारा ब्रेन उस इमेज को लेके चलता है। तो जब आप डायरी आप लिखते हैं तो आप अपने आप जब लिखेंगे तो वो दिमाग में इमेज हमारे क्रिएट होती रहती, बनती जाती। और जब इमेज बन जाएगी तब उसके बाद में आप आपके लिए वो हैप्पीनेस का काम करेगी। हैप्पीनेस क्यों करेगी? क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स बाहर से आ रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को तुरंत डायरेक्ट ले लेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारे ओपिनियन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम बाहर से उस एक्सपीरियंस को लेते हैं, ना कि सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए लिखना जरूरी। Ji, sir. Our next question is from Nupur. She wants to know, how can I monitor my mental health? What is healthy and what is concerning in today's time? मैंने एक्सरसाइज करने को बोला कि आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपना वेलनेस लेवल, वेलनेस का मतलब सबसे पहले आपको हेल्थ और वेलनेस दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। वेलनेस वो चीज नहीं है, वेलनेस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपका बॉडी का है, आपका ब्रेन का है, आपका स्पिरिचुअल का है। तीनों को मिला के आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप मैं एक एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा कि नेचर जो है ना, नेचर इन 3 चीजों से चलती है। हम इतने सेल्फिश हो गए कि हमने नेचर से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है ये पेंडेमिक आया, नेचर ने हमें पनिशमेंट किया। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले सब हैप्पी हैं। आप कोई हमें बताइए नेचर में कोई भी प्लांट्स बताइए, कोई भी एनिमल बताइए, कोई दुखी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेचर के साथ जा रहे हैं। और आज हम भी नेचर के साथ चलने के लिए हैं। पता चला क्या हुआ सुबह से, कहने लगा काढ़ा बना लो, कहने लगा तुलसी मिला दो उसमें हल्दी का दूध पियो। तो वो क्या है, हम नेचर की तरफ जुड़ने जा रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर चीज के साथ में सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम से चलो, इस सिस्टम। बॉडी सिस्टम से नहीं चलती है, बॉडी अपने हिसाब से चलेगी। बॉडी 10 से 6 की जॉब नहीं करती है। बॉडी को सुबह आंख खोलते खन उसको चाहिए, उसको उसकी चीज जरूरत चाहिए। अगर नहीं वो मिलेगी हम कुछ नहीं करते। Sir, our next question is from our faculty member, Dr. Teenam Bora. She wants to know, how can those who are living alone maintain their mental wellness during these times? हाँ, वो जो मैंने बताया था कि इसमें आप स्पिरिचुअल वेलनेस और इमोशनल वेलनेस, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। अगर हम दिन भर में 10 मिनट अगर सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। और आप उस अकेले में भी आप अपनी एक दुनिया, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखिए, बड़े बड़े से जो क्रिएटर रहे हैं, चाहे किसी को देख लीजिए, आप अकेले ही उन्होंने वर्क करना किया है। सचिन तेंदुलकर के विषय में कहा जाता है कि वो रात भर प्रैक्टिस करते थे, अकेले करते थे, कोई साथ में नहीं होता था। आप अकेले अगर करेंगे वो आपकी क्रिएटिविटी होगी, आप
आप उसके मालिक होंगे, क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होता। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रीडिंग अच्छी बुक्स कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं। ये आपकी ग्रोथ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। Sir, our next question is from Ashita Bell. She wants to know, how does one deal with the screen fatigue that we're all going through, and how does one bring themselves to initiate in other tasks and activities like even exercising? हाँ, मैंने बताया कि आपको जो क्योंकि हम जितना भी एक्चुअली क्या होता है कि हम सब हर सॉल्यूशन मोबाइल से ढूंढते हैं। हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि दिमाग में, मैंने कहा ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में फाइट चलती रहती है। हमें जो चीज सोल्यूशन होता है, हमने मोबाइल उठाया, हमारे कॉन्शियस माइंड ने तुरंत मोबाइल को उठा के दे दिया कि हाँ इसमें सोल्यूशन है। नहीं, आप अगर कोई भी चीज आपको जो पसंद आप करते हैं, अगर वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपकी वो पर्सनालिटी डेवलप करेगी, आपका फिजिकल डेवलपमेंट आपका होगा, और सबसे बड़ी आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, जिसका मैंने अपनी स्लाइड में मेंशन किया। Sir, our next question is from our faculty member, Mr. Mohit Kishore Vats. He wants to know, what are your views on multitasking? Many look down upon people who are not able to do that. Please share your views. Multitasking. मल्टीटास्किंग, देखिए ना, मैंने इस समय हमें क्या जरूरत है, प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी कि मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। हमारे पास स्ट्रेस वैसे बहुत ज्यादा, मैं बताऊं मल्टीटास्किंग का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे कि आप सोशल साइट्स पे जाते हैं, आपने देखा कि अपने फ्रेंड सर्कल में या ये हो रहा, ये इसके साथ ये घटना हो गई, इसके साथ ये घटना हो गई, साथ में अपने आप को आप मेंटेन रख रहे हैं, आप घर की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। आप किस तरीके से अपने लाइफ को सेट करेंगे, ये डिसीजन आप ही को करना पड़ेगा। तो मल्टीटास्किंग आप उसको मतलब यानी प्राथमिकता के हिसाब से सेट करिएगा कि कौन से नंबर 1 कौन से 2, अगर वो कम रहेंगे तो आप इस समय सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्रेस से फ्री रहिए। जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं, डॉक्टर यही कहता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्यों सोचिए पॉजिटिव? क्योंकि स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। तो टास्क आप रखें, लेकिन आपकी बॉडी कितनी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय दिक्कत है कि हमारी बॉडी सस्टेन करनी चाहिए। अगर वो करेगी तो आप मल्टीटास्क अपना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। Thank you, sir. Sir, our next question is from Dr. Manasvi Maheshwari. She wants to know, how can one maintain a work-life balance, especially in the times of pandemic? वर्क लाइफ, मैंने बताया ना, अगर यही जो 10-11 स्लाइड्स मैंने बताई, आप सुबह से शाम तक का टू डू लिस्ट आप बनाइए। आप उसको करेंगे कि हाँ इतना मिनट इसमें देना है, इतना इसमें देना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं कि आप 9:30 पे आपको ऑफिस के लिए निकलना है, या 9 AM पे निकलना है, और 9:55 पे आपको ऑफिस के अंदर एंट्री करनी है। आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो गया कि आपको ये काम करना है। फिर आपको लंच दोपहर में इतने बजे करना है, शाम को इस समय आना है, रात में खाना है, टीवी देखना है, और बाद में इतने बजे सो जाना है। ये दिमाग में सब सेट होता है। इस समय पेंडेमिक के समय क्या दिक्कत है कि आप जब मन चाहे तब सुबह सो के उठें, जब मन चाहे आप खाना खाएं, घर में बनाने वाले भी अपने हिसाब से बनाएंगे, तो वो सब डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती है। मैं बार बार वो इस चीज को बोल रहा हूँ कि बैलेंस करने के लिए आपको वो सिस्टम खुद डेवलप करना पड़ेगा, कोई आपको बता नहीं सकता। सेल्फ केयर आपको खुद करनी। सेल्फ केयर में क्या चीज है कि आपको बॉडी को देखना है, आपको मेंटल अपना माइंड को देखना है, और आपको अपने स्पिरिचुअल मतलब आपको आइडियाज को स्ट्रॉन्ग करना है। Sir, one of our students is asking, can you suggest name of some good books? श्योर, इसमें कई सारी बुक्स आती हैं। मेरे को अगर करेंगे तो मैं काफी सारी लिस्ट भेज दूंगा, लेकिन एक बुक्स मैं बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक है, जस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बुक्स है, बड़ी, ये एक है बड़ी सोच का, शायद आपको दिख रही है क्या? नहीं, उल्टी दिख रही है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत अच्छी बुक्स मुझे लगती है। इसमें आप किस तरीके से अपनी सोच से अपनी प्रोग्रेस फिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, पॉजिटिव आप बोलते हैं, आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलते हैं जो दूसरों को हर्ट करे, ये सब चीजें अगर लेके आप रखेंगे तो आप लाइफ में हरदम हर स्टेप पे आप सक्सेसफुल होंगे। मुझे अच्छी लगती है ये बुक। जो है राइटर है इनके डेविड जे शॉर्टेज हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, आप देख सकते हैं।
और भी बहुत सारी हैं, मैं लिस्ट भेज दूंगा। अगर मेरा नंबर दे रखा है, या कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर लें। Thank you, sir. That was the last question for the day. You've been very patient with us. Thank you so much for all the insights shared. Suchi, over to you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Now, I would request Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to deliver vote of thanks. थैंक यू सुची। वाकई में बहुत अच्छा सेशन था। मिस्टर विकास ने जिस तरीके से इन सारी चीजों को रखा इस पैंडेमिक टाइम में, एक्चुअली सारे लोग बहुत स्ट्रेस में थे। हम सारी फैकल्टी के बीच में काफी प्रॉब्लम्स रही। इवन सारे देश में इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, और ये सेशन, इसकी सेशन की वाकई में बहुत जरूरत थी। और जो आपने बताया उससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, बहुत लर्निंग हुई होगी। और जो भी स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी और हम सारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। सो थैंक्स टू यू। और वाकई में एक बात है जो आपने कहा, 7 ways ऑफ वेलनेस आपने बताए, और जो म्यूजिक की बात कही वाकई में वो बहुत अच्छी है, क्योंकि म्यूजिक बहुत स्ट्रेस रिलीज करता है, जो मैंने इस दौरान ज्यादा महसूस किया। वैसे तो मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन इस दौरान जो मैंने महसूस किया कि आप अगर कोई भी लाइट म्यूजिक, या आप रैप भी सुनते हैं, जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि हम सैड म्यूजिक सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुने। सैड सॉन्ग की जरूरत नहीं। एज ए स्टूडेंट अगर तुम लोगों को रैप भी पसंद है वो भी सुन सकते हो। थोड़े फनी म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा अच्छे तरह का म्यूजिक सुनो, फास्ट म्यूजिक सुनो। तो सैड म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है। सैड तो पूरा वातावरण सैड है, एनवायरनमेंट पूरा सैड है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अच्छे म्यूजिक सुनना चाहिए। और ओवरऑल बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन भी रहा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मुझे लगता है कि आगे भी हम जुड़े रहेंगे, और जब कॉलेज खुलेगा तो हम आपको बुलाएंगे भी। और थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। थैंक यू मैम। मैम मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वेलनेस, मैं जर्नलिस्ट हूँ और सर जानते हैं कि मेरा पैशन है जर्नलिज्म, मेरा पैशन था। मैं करीब 4 साल से वेलनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और खासकर इस समय पेंडेमिक के समय, पिछले सबको मालूम है, मैं करीब हमारी फैमिली में 15 से 20 दिन में 10 लोग एक्सपायर हुए। एकदम हिला दिया हम लोगों को। मतलब एक तो हमारे मतलब यानी कि आंटी हैं, उनकी फैमिली में मायके साइड में 5 लोग 15 दिन में खत्म हुए। तो मतलब मेंटली हम लोग इतना वो कर दिया। हम खुद इससे कोरोना से रहे हैं अफेक्टेड, लेकिन हम लोगों ने 5-6 दिन में रिकवर कर लिया, क्योंकि हम न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स मैक्सिमम यूज करते हैं, तो हम उस चीज को बहुत जल्दी रिकवर कर। लेकिन मेरे अंदर उतना जुनून और बढ़ गया कि नहीं है, हम अगर स्ट्रेस में आ गए या वो सब चीज हो जाएगी, तो मैंने और तेज उसको कर दिया। मैं उस पर ज्यादा वर्क करने लगा। तो सभी बेसिकली हमें एक तो अपनी सोच पे काम करना है, इमोशंस पे काम करना, जो आपने सारी चीजें बताई। क्योंकि ये स्ट्रेसफुल माहौल में हमारे यहाँ भी फैकल्टी मेंबर्स के संग में भी बहुत ट्रेजेडी हुई, स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स के संग में भी ट्रेजेडी हुई। तो हम लोग वाकई में बहुत सफर किया है सारे लोगों ने इस दौरान। तो इस सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ होगा, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आगे भी स्ट्रेस रिलीज होगा। और ट्राई करेंगे कि इन सारी चीजों से किसी भी तरह रिकवर करें, और अपने को अप्रोच थोड़ी सकारात्मक करें तो बेटर। जी, थैंक यू श्रुति। Thank you so much, ma'am. I would like to thank sir for joining us today. I would also like to thank all our participants for joining us and making the session a success. I request all the participants to kindly fill in the feedback form, the link for which is provided in the chat box. Whoever fills the form gets the attendance certificate. Thank you, everyone. Stay safe. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.
At Delhi Metropolitan Education DME, we have an excellent infrastructure. We have a studio for production which is known as Studio 62. It was inaugurated by Tigmanshu Dhulia, who is a noted filmmaker. And within the studio, we have so many facilities. We have a chroma setup, we have a news setup, we have a chat room setup, and since floor is splendid, we can shoot any kind of program. We also have a separate radio studio. And we have also organized Mega Film Festival SIFI and International Conference ICANN, and received lots of films and received lots of paper in that conference. For a college, the software is very important. In my college, the software comprises of three things. First is the teaching, second is the research, and third is the mentoring. With the help of these three softwares, we train a student in such a manner that placement is just a byproduct. One of the essential features of Law School at DME is its well-equipped moot court. Since its inception, DME has organized several moot court competitions and workshops just to enhance the mooting skills, which have been conducted under the distinguished guidance of various luminaries from bench, bar and academics. Judicial Training Academy is the most shining feature of Delhi Metropolitan Education, Noida. We have a huge library to help out our students with more than 15,000 books, including Halsbury's Laws of England. DME has a very robust library infrastructure that not only caters to the curriculum needs of the students and the teachers, but also provides a great academic ambience. The library is equipped with latest books, journals and other e-resources. At DME, we not only believe in academic excellence, but we also provide platform to students to showcase their talent through big open amphitheatre, beautiful auditorium, multi-purpose seminar hall equipped with world-class facilities. Recently, we have conducted Cultural Fest Aloha in January 2020 and Anugunj, that is the Universal IP Fest, in February 2020.